ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਖ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ 7 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ। ਯਹੂਦਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਲੇਵੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਦ ਅਤੇ ਰਾਉਬੇਨ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੀਲੋ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਣਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੋਲ ਸ਼ੀਲੋ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਏ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੀਲੋ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਬੀਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, 7 ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ पहली आयत लिखा है कि बनी इसराइल की सारी जमात ने सेला में जमा होकर खैमा इज्तिमा को वहां खड़ा किया और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था। ये पहली आयत में दोबारा पढ़ो जरा पंजाबी च। हाँ जी, दोबारा पढ़ो। इस्राएलियां जी, इस्राएलियां ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸ਼ਿਲੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਬਰਨੈਕਲ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬਰਨੈਕਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਟੈਬਰਨੈਕਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ, ਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਬੂ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਜਾਂ ਖੈਮਾ ਇਜਤਮਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਨੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਆਊਟਰ ਕੋਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਕਾਮ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਨ ਮਕਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੰਬੂ ਦਾ ਗੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਨ ਜਾਜਕ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕ ਆਫ ਦਾ ਕਵਨੈਂਟ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਦੂਕ, ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਬਰਰੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬੂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੰਬੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਮਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੈਮਾ ਇਜਤਮਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਟੈਬਰਨੈਕਲ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ वर्स हैगी, पहली वर्स है, बनी इसराइल की सारी जमात ने सीला में जमा होकर खैमा इज्तमा को वहां इकट्ठा किया, खड़ा किया, सॉरी, खैमा इज्तमा को वहां खड़ा किया और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੈਮਾ ਇਜਤਮਾ ਖੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖੈਮਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੜਾ ਖੈਮਾ ਇਜਤਮਾ ਜਾਂ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था, यानी कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਲਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि तौबा करो, लिखे ना कलाम च, तौबा करो ताकि आसमान से खुदा की तरफ से ताजगी के दिन आए। ਤੇ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬੂ ਹੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੰਬੂ ਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੰਬੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੰਬੂ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਯਾਨੀ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖੈਮਾ ਇਜਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਬਲੀਸ ਹਾਵੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੰਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨਗਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਢੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨਗਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੀ 18ਵੇਂ आज की पहली 18वें चैप्टर की पहली वर्स से लिखने हैं कि बनी इसराइल की सारी जमात ने सीला में जमा होकर खैमा इज्तमा को वहां खड़ा किया। तो अच्छी की करना चाहिए सानू सारे नु अपने घर च खैमा इज्तमा नू खड़ा करना है, यानी कि तंबू नू बनाना है, तंबू नू खड़ा करना है। यानी मतलब की है साडी फैमिली प्रेयर लाइफ जिहड़ी है वो मजबूत होनी चाहिए। तो और उसदे बाद नाल ही की लिखा कि उस मुल्क ने की ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਨਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਨੀ इसराइल में 7 कबीले ऐसे रह गए थे। नाम क्या बनी इसराइल में अच्छा 7 कबीले ऐसे रह गए थे जिनको मिरास उनको तकसीम होने ना पाई थी। और यशवा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम कब तक इस मुल्क पर कब्जा करने में, जो खुदा तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने तुमको दिया है, सुस्ती करोगे। ये बड़ा बड़ा एक मसला है कि असी अपनी मिरास असी आप ही कई बार अपनी सुस्तियां की वजह नाल जिहड़ी खुदा ने सानू आशीष देनी है, क्यों जो असी लेजी हाँ, क्यों जो साडे कोल परमेश्वर लई टाइम कोई नहीं, क्यों जो असी सुस्त है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸਰਾਈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਟਨਪੁਰ, ਹਸਨਾਬਾਦ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਪੁਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਓ 5 ਵਜੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਲ ਲਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਠਿਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ गए, उन्होंने उन्होंने दी मिरास नहीं मिली। तो बात यह है कि वो मुझे अभी पता चला माया भी आई है। तो लेट मी टॉक इन पंजाबी में, बात थोड़ी हिंदी में बात करता था कि माया को भी समझ लग जाए। तो बात यह है कि हमें क्या करना है कि अब एक तो यह है कि हमारा जब जो टेंट है या तंबू है वो खड़ा होना चाहिए फैमिलियों में, घरों में। और दूसरा ये है कि जब हम मिरास है, जो हमारी जायदाद है, जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, देनी है, वो कई दफ़ा हम अपनी सुस्ती की वजह से और अपनी यानी कि लेजीनेस की वजह से हम उसको नहीं हासिल कर सकते। दुआ के लिए टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, चर्च जाने के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब कामों के लिए टाइम होता है, फैमिली प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। हर जिस्म थक जाता है, बाकी कामों के लिए नहीं थकता। तो इस तरह मतलब जो सुस्ती है वो ये जो इसराइली है, ये अपनी सुस्ती की वजह से वो पूरे मुल्क पर कब्जा नहीं कर रहे थे, या उनकी जो जायदाद थी वो उनको, बाइबल में मसीह ने खुदा ने क्या कहा था, यूहन्ना बपतिस्मा वाले देने वाले के दिन से लेकर अब तक खुदा आसमान की बादशाही पर जोर आजमाई हो रही है, और जोर आवर उसको क्या करते हैं, छीन लेते हैं। इसको पंजाबी में या हिंदी में पढ़ना हो तो शायद आपको ज़्यादा समझ आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कहाँ लिखा है, अगर किसी को मिल जाए तो निकाल सकता है। जोर आवर क्या करते हैं, छीन ले जाते हैं। आसमान की बादशाही पर क्या हो रहा है, जोर आजमाई हो रही है और जोर आवर उसको छीन लेते हैं।
एक मिनट में ढूंढ के देता हूँ। अगर मिल जाए तो पढ़ देना किसी को। ये पढ़ें मत्ती की इंजील 11वां चैप्टर उसकी 12 आयत में पढ़ें। पंजाबी च पढ़ दो या हिंदी उर्दू च, जिन्होंने मिल जाए पढ़ दो। 11 chapter verse brother। वर्ष 12। ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ मूवी ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ? ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ परमेश्वर के राज ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? जोर आजमाई होती रही है और जोर आवर उसको छीन लेते हैं। तो ये जो है, ये जो सुस्त कबीले थे, वो परमेश्वर ने यहोशू ने उन्हें कहा कि तुम कब तक उस मुल्क पर कब्जा करने में जो खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने तुमको दिया है सुस्ती करोगे? परमेश्वर ने तो दे दिया, हमें आशीष भी दे दी, बरकत भी दे दी और आपको उस जगह पे भी ले आया, लेकिन कब्जा तो आपने खुद करना है। नहीं तो वो अपनी सुस्ती की वजह से वो अपने टेंटों में या अपने कामों से हो सकता है ना निकलते हो, या अपने अपने मस्तियों में या मौज मस्तियों में लोग पार्टियां करते हैं, शराबें पीते हैं, डांस पार्टियां करते हैं और बहुत सारे थिएटर चले गए, मूवीज देख ली, फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजार लिया, लेकिन खुदा के साथ टाइम नहीं गुजारते। तो इसलिए वो उनको उनकी मैरास या उनकी जायदाद या वो जो उनका ज़मीन में जो हिस्सा है वो उनको नहीं मिलता। तो इधर यशोर को कह रहा है कि अपनी सुस्ती को दूर करो, सुबह टाइम पे उठो, अपने काम करो और परमेश्वर के साथ टाइम गुजारो, बाइबल पढ़ो, खुदा के हाथों में दो। तो खुदा जो है हमारा आसमान का बाप जो है वो हमारी मेराज जो है वो इब्लीस को कभी भी वो छीनने नहीं देगा। तो आगे हम पढ़ते हैं चौथी आयत में, सो तुम अपने लिए हर कबीला में से 3 शख्स चुन लो, मैं उनको भेजूंगा और वो जाकर उस मुल्क में सैर करेंगे और अपने अपने मेराज के माफिक उसका हाल लिखकर मेरे पास लाएंगे। वो उसके 7 हिस्से करेंगे, यहूदा अपनी सरहद में जनूब की तरफ और यूसुफ का खानदान अपनी सरहद में शुमाल की तरफ रहेगा। सो तुम उस मुल्क के 7 हिस्से लिख कर मेरे पास लाओ, यहाँ लाओ, ताकि मैं खुदा के आगे जो हमारा खुदा है तुम्हारे लिए कुरा डालूं, क्योंकि तुम्हारे दरमियान लावियों का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि खुदावन की कहानत उनकी मैरास है और जद और रोबन और मनसी के आधे कबीला को यरदन के उस पार मशरक की तरफ मैरास मिल चुकी है, जिसे खुदा उनके बंदा मूसा ने उनको दिया। अब खुदा जशुआ उनको कह रहा है कि 3-3 लोग लेकर आओ हर खानदान के मुताबिक, और उनको 3 बार 36, तो कितने हो जाएंगे? 36 लोग हो जाएंगे। हर कबीले से 3-3 लोग आए तो 12 कबीलों में से 36 लोग बन जाएंगे। तो उसने कहा कि जाओ उनको सबको लाओ, मेरे पास लाओ, और मैं उनको इस मुल्क की सैर करने के लिए भेजता हूँ। वो हर कोई 3-3 लोग जो है ना अपनी अपनी यानी कि 12 रिपोर्टें शेयर करेंगे। 3 लोगों का एक ग्रुप है और 12 ग्रुप हैं, तो टोटल 36 लोग बन जाते हैं। तो 12 ग्रुप, हर ग्रुप अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इस तरह करके उसने
उनको कहा कि जब मैं सारी रिपोर्टें लूंगा और फिर वो 12 ग्रुप मिलकर इस सारी जमीन को नहीं सॉरी, ये 7 कबीलों की बात कर रहे हैं, सॉरी मेरे ख्याल थोड़ा मैं कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी। अगर 7 कबीलों को उसने भेजा था तो 7 तो 21 लोग थे, यानी कि 7 ग्रुप थे, 3 3 के, 3 लोगों का एक ग्रुप है और 7 ग्रुप हैं, तो टोटल 21 लोग बन जाते हैं। तो उसने 7 ग्रुपों को भेजा और उन्होंने कहा कि 7 हिस्सों में तकसीम करो इस जमीन को और मेरे पास आओ और मैं खुदावन के आगे कुर्रा डालूंगा। यानी कि खुदावन की मर्जी को जानना जो है वो उत्तम है, बहुत ज़रूरी है। तो कई दफ़ा हम बहुत सारी मतलब कुर्रा डालना जो है वो नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस नहीं है क्रिश्चियनों की। मतलब हर बात के लिए हम कुर्रा नहीं डालते, ना डाल सकते, ना डालना चाहिए। खुदावन की मर्जी को जानने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन यहाँ हम बाइबल में चंद एक बार हम देखते हैं कि कुर्रा भी डाला गया। तो यहाँ पे खुदावंद की मर्जी को जानने के लिए उसने क्या किया कि उसने कहा कि तुम अपनी रिपोर्ट लेकर आओ, 7 हिस्सों में जमीन को तकसीम करेंगे और तो मैं क्या करूंगा, कुर्रा डालूंगा। कुर्रा का मतलब होता है कि पर्चियां डालना। हाँ, सबके नाम लिख दिए गए और 7 कबीलों में तो जिसकी पर्ची जिस जगह के लिए निकली वो जगह उसको उनको दे दीजिए। ये मतलब है कुर्रा डालने का कि किसी की मर्जी नहीं चलेगी। 7 हिस्सों में आपने जमीन को तकसीम कर दिया है, तो अब 7 को कौन सा हिस्सा किसको मिलना है, कोई ये नहीं कह सकता कि जी मुझे मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला। तो हम कुर्रे के हिसाब से चलेंगे। लेकिन मैं जैसे कहा कि कुर्रा डालना इज नॉट ऑलवेज, मतलब बाइबल की कोई एक वो नहीं है, एक डॉक्ट्रिन नहीं है कि हर मामले में कुर्रा डाला जाए, और डालना नहीं चाहिए हर दफा जब तक खुदावंद की तरफ से कोई आगाही ना हो। तो हम यशवा की तरफ से देखते, यशवा को के कैरेक्टर से हमें पता है कि वो जो भी काम करता था खुदावंद की मर्जी से और खुदावंद के से पूछ के करता था। तो यकीनन उसने कुरा डालने का, खुदावंद की आगाही से उसने ये स्टेप लिया। तो खुदावंद की मर्जी को जानने के लिए उस पर एक अलहदा से किसी दिन बात कर लेंगे कि और क्या तरीके हैं खुदावंद की मर्जी को जानने के, तो जो कि ज़्यादा मौसर और ज़्यादा बाइबल में ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो लेकिन बात यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उसने क्या किया कि मेरास को या उनकी जायदाद को या उनके ज़मीन को 7 जो कबीले रह गए थे उनमें तकसीम करने के लिए उसने क्या किया, कुर्रा डाला। लेकिन साथ उसने कहा क्योंकि तुम्हारे दरमियान लावियों का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि खुदावंद की कहानत उनकी मेरास है और जद और रोबन और मनस्सी के आधे कबीले को यरूशलेम के उस पार मशरक की तरफ मेरास मिल चुकी है जिसे जिससे खुदावंद के बंदा मूसा ने उनको दिया था। तो हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो लावी का कबीला है वो, क्योंकि कहानत उनके ज़िम्मे थी, जो जिसे हारून जो था वो लावी के कबीले में से था, मूसा जो था लावी के कबीले में से था। हारून से कहानत चली तो उसको हारून को या लावियों के कबीले, पूरे कबीले को ही खुदा ने इसकी खिदमत के लिए मखसूस कर दिया था कि वो महान जाजक और जाजक जो होंगे या जो काहिन होंगे या पंडित कह लें उनको हिंदी में, वो लावियों के कबीले में से होंगे। और उनकी उनकी क्या है, उनकी मेरास क्या है या उनकी जायदाद क्या है, खुदावंद की कहानत उनकी मेरास है। ये अंजना अगर 7 है तो 7वीं आयत पढ़ो तो पंजाबी में। जी। ਪਰ ਲੇਵੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਦ ਅਤੇ ਰੌਬੇਨ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ बस 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 ਯਹੋਵਾ बस ਦੇ ਦਾਸ। बस मुझसे नहीं पढ़ा सी। यहोवा दी जाजकाई इन्हां दी मिलक है, यानी कि मेरास है, जायदाद है या मिलक है, इन्हां दी मलकीयत है। ठीक है ना।
ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਾਜਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह के वचन च की लिखा कि पुराने नए अदनामे में हम पढ़ते हैं कि तुम शाही कहनों का फिरका हो, तुम महान जाजक जो हैं या उसके कबीले में से हो। हमें मसीह जो है, हम जो क्रिश्चियन हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, कि सेवक जो हैं, हम जाजक हैं। और ये हमारी मैरास है, यानी कि जाजक होना या काहन होना परमेश्वर की तरफ से ये हमारी मिलक है या मलकियत है, ये हमें करना चाहिए। यानी कि जाजक क्या करता था, खुदा परमेश्वर को तंबू के अंदर क्या करता था, वो सर्व करता था, परमेश्वर की खिदमत के लिए जाता था अंदर। तो इस तरह हमारे लिए हम जो है, हम परमेश्वर के जाजक, और वो जाजक होना जो है ये बड़ी बरकत की बात है। यानी कि परमेश्वर को सर्व करना, परमेश्वर के लिए काम करना, उसके बुलावे के मुताबिक उसके साथ चलना। तो ये जो है ये हमारी मिलक है। तो ये जो लावियों का कबीला था, उनको ये मैरास मिली थी। 8वीं आयत में इस तरह लिखा है कि पास वो मर्द उठकर रवाना हुए और यीशु ने उनको उस मुल्क का हाल लिखने के लिए गए ताकीद की कि तुम जाकर उस मुल्क में सैर करो और उसका हाल लिखकर फिर मेरे पास लाओ, और मैं सैला में खुदावंद के आगे तुम्हारे लिए कूड़ा डालूंगा। अब देखिए वो उसने क्या किया है, कूड़ा तो उसने डालना है, लेकिन खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उसने डाला, क्योंकि वो कह रहा है कि परमेश्वर के अगे मैं की पावांगा, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कूड़ा पावांगा या पर्चियां पावांगा। तो चुनाचे उन्होंने जाकर उस मुल्क में सैर की और शहरों के 7 हिस्से करके उनका हाल किताब में लिखा, और सैला के में उनके लिए खुदावंद के हुजूर कूड़ा डाला, और वहीं यीशु ने उस मुल्क को बनी इसराइल की तकसीमों के मुताबिक उनको बांट दिया। अच्छा जी, ये 8 वर्सेस हमने आज पढ़ ली इसकी। तो आगे अगर कोई अंजना रीडिंग करेंगी, जरा आगे आगे भी कर दो 11 से वर्ष से। हाँ जी, 11 टू बिन्ने यामीन ਦੀਆਂ एंड तक ਹੱਦਾਂ। पढ़ दो, एंड तक पढ़ ਜੀ दो। ਜੀ ਤਾਂ ਬਿन्ना यामिनिया ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯੂਰੋ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਥਾਣੀ ਚੜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਬੈਂਤ ਆਵਨ ਦੀ ਉਚਾੜ ਤੀਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੱਦ ਲੂਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੀਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੇਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਅਥਰੋਥ ਆਦਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਤ ਹੋਰੋਨ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਤ ਹੋਰੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕਿਰਿਅਤ ਬਿਆਲ ਤੀਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਅਤ ਯਾਰੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਕਰੀਅਤ ਯਰੀਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਦ ਲਹਿੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਨਫੇ ਤੋਂ ਹਾਥ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਤੇ ਤੀਕ ਅੱਪੜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਦ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਬਨ ਹੀਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਰਾਫਾਇਮ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਥਾਣੀ ਯਬੂਸੀਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੀਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉੱਤਰੀ ਦਾ ਏਨ ਰੰਗੇਲ ਨੂੰ ਉਤਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਏਨ ਸ਼ਮਸ਼ ਕੋਲ ਨਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਗਲੀ ਲੋਥ ਤੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਹਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੀਕ ਉਤਰੀ। ਉਹ ਆਰਾ ਭਾਵ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੀਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਆਰਾ ਬਾਹ ਨੂੰ ਉਤਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਹੱਦ ਬੈਂਤ ਹਾਲਗਲਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੀਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅੱਪੜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੀਕ, ਅਰਥਾਤ ਯਰਦਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ਤੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਯਰਦਨ ਸੀ। ਇਹ ਬਿन्ना यामिन ਦੀ ਮਿਲਕ ਦੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ।
ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਨ: ਯੀਰੋ ਅਤੇ ਬੇਤ ਹਾਗਲਾ ਅਤੇ ਏਮਕ ਕਸੀਸ ਅਤੇ ਬੇਤ ਆਰਾਬਾ, ਸਾਮਰੀਆ ਅਤੇ ਬੇਤ ਏਲ ਅਤੇ ਅਬੀਮ, ਪਰਾ, ਅਫਰਾਹ, ਕਫਰ ਅਮੋਨੀ ਅਤੇ ਅਫਾਨੀ ਅਤੇ ਗਾਬਾ, 12 ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਗਿਬਿਓਨ ਅਤੇ ਰਾਮਾ, ਬੈਥੇਰੋਤ ਅਤੇ ਮਿਸਪੈ, ਕਫੀਰਾ, ਮੋਸਾਹ ਅਤੇ ਰਕਮ, ਯਿਰਪੇਲ, ਤਰਲਾਹ ਅਤੇ ਸੈਲਾ ਅਲਫ ਯਬੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ, ਗਿਬਤ, ਕਿਰਿਯਤ, 14 ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਯਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬੈਂਜਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਜਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਟਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੈਂਜਮਨ ਜਾਂ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕਬੀਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਾਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ 1 ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੈਂਜਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ काफी ज्यादा बहुत सारा हिस्सा देता। बिन्यामीन के कबीले का कुरा उनके घरानों के मुताबिक निकला। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੇ कुरा ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਚਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਭੁਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅੰਜਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਬੁੱਕ ਜੈਨੇਸਿਸ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਤਪਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤਪਤ, ਹਾਂਜੀ, ਉਤਪਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂਗੇ 30 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 52 ਵਰਸ ਪੜਿਓ, 22 ਵਰਸ ਪੜਿਓ, 22 ਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 22, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਯੂਸਫ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, जो रेचल जो थी वो यूसुफ की, सॉरी, रेचल जो थी वो जेकब याकूब की लिया की छोटी बहन थी और दूसरी बीवी थी उसकी। तो लिया से बच्चे पैदा हुए, लेकिन रेचल से कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तो उसने परमेश्वर से, ज़ाहिर है उसके मन में बहुत तकलीफ थी, और जब वो यूसुफ पैदा हुआ तो उसने एक नबूवती कलाम किया, उसने प्रोफेसी की, और उसने भविष्यवाणी की थी उन्हें कि मैनू परमेश्वर ने एक और पुत्र दे देता। मतलब अभी एक ही पुत्र हुआ है, एक बेटा हुआ है जोसेफ, लेकिन उसने कहा कि मुझे एक और पुत्र दे दिया, अनदर सन। फिर से पढ़े जरा ये छोटा सा हिस्सा जो पंजाबी च। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸਫ ਇਹ ਆਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक होर पुत्र दिता ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ? ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਬੂਤੀ ਕਲਾਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ये उसने बेंजामिन के लिए या बिन्यामीन के लिए पहले से बोल दिया था कि खुदा ने, परमेश्वर ने मैनू एक तो पुत्र यूसुफ हो गया, ते रेचल से एक और बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था बेंजामिन या बिन्यामीन। बिन्यामीन पैदा हुआ था। अब लेकिन बिन्यामीन पैदा होने से पहले अगर हम देखें तो पौलुस जो जेकब है उसकी 11 बेटे ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त तक उसका नाम जो है चेंज तब्दील नहीं हुआ था, बल्कि वो याकूब का नाम याकूब ही था। लेकिन जब 11वें से 12वां बेटा पैदा हुआ है तो उससे पहले खुदा ने उसकी नेचर उस याकूब को, याकूब से, यानी याकूब का मतलब होता है फ्राडिया, धोखेबाज, और उसको इसराइल बना दिया था। इसराइल खुदा का बब्बर शेर भी उसको कहा जाता है, और अगर उसके किसी एक और मतलब है इसराइल का, अगर किसी के जहन में आए तो बता सकते हैं। तो अब मतलब है कि खुदा ने उसकी नाम भी चेंज कर दिया, उसका कैरेक्टर भी बदल दिया। तो ये हम देखते हैं किस कहाँ देखेंगे, उत्पत्ति 32 ਦਾ 33 पढ़ो, 32 ਦਾ 33 जी। okay. 32 ਚੈਪਟਰ ਦਾ 33 है, 32 ਦਾ एक मिनट, नहीं है 33 नहीं। 32 ਦਾ 22 ਜੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਬੋਕ ਤੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਚੜਾਓ ਤੀਕ ਭੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦਾ ਜੋੜ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। हाँ हाँ ठीक ठीक पढ़ो। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਕੂਬ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਇਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। बस ਉਪਰੰਤ काफी। ਜੀ। हाँ जी ठीक। ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਕੂਬ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰ आसमान की जो स्वर्ग का राज है उस पर क्या होती है? जोर आजमाई हो रही है, और जोरावर क्या करते हैं? उसको छीन लेते हैं। अच्छा, ये जंग जो है या ये लड़ाई जो उसने कुश्ती की, ये अपनी बरकत छीनने के लिए या लेने के लिए उसने की। कई दफा मतलब हमें जोर मारना पड़ता है अपनी आशीष लेने के लिए, अपने जो परमेश्वर ने हमारे लिए जगह मुकर्रर की है उसको, या जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं उनको लेने के लिए हमें जोर मारना पड़ता है। तो ये याकूब का हम देख रहे हैं। अब अगर आप पीछे जाके देखें तो इससे पहले इसके 11 बेटे थे, 11 बेटे थे। यूसुफ ऑलरेडी पैदा हो चुका है, और बेंजामिन जो है वो अभी पैदा नहीं हुआ, या बिन्यामीन पैदा नहीं हुआ अभी तक। बिन्यामीन इसके बाद पैदा हुआ, रेचल में से पैदा हुआ, और जब उस वक्त पैदा हुआ जब आ, आ, जब जब इसका नाम जो है वो तब्दील हो गया
इसको खुदा ने कहा आज से क्या है, इसलिए बच्चों के नाम भी जो है हम सोच समझ के रखते हैं कि यानी कि ऐसे नहीं, आजकल पता है अजीब अजीब नाम रखते हैं इधर लोग। वो अगर लेट्स से मेरा नाम जावेद है, मेरी वाइफ का नाम शहीन है, मेरे नाम से 2 अक्षर ले लिए और नन्नी के मेरी वाइफ के नाम से अब पहले 2 अक्षर ले लिए और एक नया नाम बना दिया। आपको समझ आ रही बात की? तो इस तरह मतलब लोग भी कर रहे हैं। जयशी बन जाएगा, शहीन को अगर जे को साथ मिलाएं तो जयशी बन जाएगा। तो एनीवे बात करने का मतलब ये है कि हमें बच्चों के नाम जो हैं वो बाइबल में से रखने चाहिए, क्योंकि नामों का असर होता है जिंदगियों में। तो बिन्यामीन का भी परमेश्वर ने ये नाम, खुदा ने इसको बिन्यामीन के बाप को उसका नाम जो था बदल दिया, और वो याकूब था जो फ्राडिया था, और वो उसको बब्बर शेर, खुदा का शेर बना दिया खुदा ने। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो जाके फिर बिन्यामीन पैदा होता है, और आज हम देखते हैं कि बिन्यामीन के कबीले को क्या मिल रहा है, उसकी मैरास मिल रही है और उसकी बरकतें, उसकी आशीष जो है वो मिल रही है। आगे जो सारा चैप्टर है वो बिन्यामीन के गिर्द, उसकी जो मिल्क है उसके गिर्द घूमता है, और उसमें सारी उसकी हदें जो हैं उनका जिक्र किया गया है, कहाँ से कहाँ शुरू हुई, कौन सी हद किधर को जाती थी। ये सारी बातें आज हमने इसमें से कलाम में से पढ़ी हैं। तो मैं आज इस कलाम को इधर ही, टाइम हो गया तकरीबन 12:30 हो गए, तो मैं आज आज के कलाम को इधर ही हम खत्म करते हैं। 18वां चैप्टर आज हम कंप्लीट, और एक किस्म का कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे, 19वां चैप्टर पढ़ेंगे यीशुआ का। आई डोंट नो आप लोगों को किसको कितनी समझ आई है, लेकिन कोशिश की मैंने कि पंजाबी हिंदी उर्दू को मिक्स करके कुछ थोड़ा सा सबको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए। तो एनीवे, सो गॉड इज गुड गॉड। हमें आदमियों की तरफ, लोगों की तरफ नहीं देखना, खुदा की तरफ देखना है। सारी मदद क्या, दाऊद ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी मेरी कुमक कहाँ से आएगी, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी, मेरी कुमक खुदा से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। तो इसराइल जो है खुदा का बब्बर शेर जो है, कि खुदा उसका जो खुदा है वो ना कभी, इसराइल का खुदा ना कभी सोता है और ना ऊँघता है। तो जिस तरह खुदा अपने वादों के पीछे खड़ा रहता है, उसने कहा था कि मैं ये जगह तुम्हें दूंगा। यशवा से उसने कहा जहां तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। तो वो वैसा ही किया, खुदा ने वो जगह उनको दे दी। अब खुदा ने तो जगह दे दी कि जी ठीक है, इसको जाके इस पे कब्जा कर लो, कब्जा हमने खुद करना है। तो खुदा ने सोर्सेज मुहैया कर दिए, खुदा उस जगह पे आपको ले आया। जब हम लोग पहले दिन इधर कनाडा में उतरे थे, तो मैंने जहाज से निकलते हुए ये दुआ की, जहाज, मैंने कहा खुदा तूने फरमाया कि जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। तो खुदा, हम इस वादे को लेते हुए इस जमीन पर कदम रखते हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने अपने वादों के पीछे वो खड़ा रहा। लोग आज भी बहुत सारे जो नर्सिंग करके आए इधर, छोटी छोटी जॉब्स कर रहे, हमने मतलब नर्सिंग में आ नहीं सकते क्योंकि एग्जाम बहुत मुश्किल होता था, ये बहुत सारी और वजूहत थी। लेकिन खुदा के फजल से जिसकी आंखें जो है यहोवा परमेश्वर पर लगी हों, वो जो है वो अपनी मेराज छीन लेते हैं। तो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और अपनी दुआओं में भी याद रखे। बहुत मुश्किल है हालात, इधर भी इतने अच्छे नहीं हैं, लोग आके बहुत यानी अजीब अजीब बातें करते हैं। बट एनीवे, दैट इज़ नॉट आवर टॉपिक। ये है कि टॉपिक यही है कि खुदा ने ये मेरास जो है वो जिसका वादा किया उसने, वो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, उसको कई दफ़ा हमें जोर मारना पड़ता है। और वो खुदावंद इसलिए खुदावंद ने मुहैया की है, लेकिन हमने खुद उस पर कब्जा करना है। तो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। तो अभी मैं छोटी सी प्रेयर करूंगा और उसके बाद आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं कोई है? हाँ जी। गुलू सैमुअल करना है, सोनिया दे बेटे प्रिंस दे। तो
और माया दी गर्दन दर्द हो रही है। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ पैड का जड़ा पता कॉलर नहीं क्या कॉलर है। हाँ हाँ। कॉलर और हाँ जी, सब आप कुछ कहने लगे जी। मेरी यूरिक एसिड हाई आया है और मेरे जॉइंट्स पेन शुरू हो गई उसकी वजह से। मेरे लिए करनी है, अरुण की बर्थडे उसके लिए करनी है, बस आज उसकी बर्थडे बस। ओके। हाँ जी, और भी किसी ने बताना है तो बता दें जी। हाँ जी अमनदीप। जय श्री कृष्ण। हाँ जी हाँ जी, साडे प्रेज द पेपरां लॉर्ड। बारे भी कर दईए दुआ। हाँ जी, साडे पेपरां बारे कर दियो दुआ जी। अच्छा जी, क्या केड़े पेपर जरा थोड़ा जिहा दस दोगे? अच्छा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ ਪੇਪਰ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੀਆਰ ਲਈ। अच्छा अच्छा ठीक है। जय श्री अच्छा जैम से माया का है नेक पेन। अमनदीप भी कुछ कह रही थी। हाँ जी अमन। प्रेज द हाँ जी। लॉर्ड। मेरा ना अद्धा सिर दर्द करता है, ਉਹਦੇ ਲਈ प्लीज प्रेयर करें। अमनदीप। हाँ जी। अच्छा ओके सो या वो चले अपनी सारी कोई मुश्किलात को खुदावंद के आगे रखते हैं। हम तो कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन खुदा ही सबकी जरूरतें पूरी करता है। जिससे कल मैं उधर खड़ा था रोड पे मनादी कर रहा था, तो किसी ने कोई पंजाबी सिख लड़का बंदा आके मुझे कहता है असी किद्दां मनीए प्रभु यीशु मसीह जीवत है या वो मदद कर सकता है, दिओ मैनू हुण पैसे दिओ। मैनू कहता हुण पैसे दिओ, मैनू उन्होंने कहो मैनू हुणे ही दवे। तो मैंने तो बात करने का ये मतलब है कि कई दफा इस तरह के लोग भी मिलते हैं। तो खुदावंद हमारा खुदा सब कुछ मुहैया करता है, कर सकता है। मैंने कहा, मुझे कहता है तू दे। मैंने कहा भाई बात यह है कि मैं जिससे लेता हूँ, मैं तो उसकी तरफ तुम्हारी मदद और रहनुमाई कर सकता हूँ, तो वही सबको दे सकता है। आदमी किसी की क्या मदद कर सकता है? तो एनीवे बात करने का मतलब ये है कि खुदावंद की तरफ देखना चाहिए। तो लेट्स प्रे खुदावंद से दुआ करेंगे हम। परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है, हालेलुया। Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, Jesus. Thank you, Father. खुदा उन कौमों के खुदा, उम्मतों के रब, तेरा शुक्र। हालेलुया। Praise you, praise you, praise you, praise you, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर दयालु परमेश्वर, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। Mighty God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Father, we bless you, Lord. Thank you, Father. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं बहना मनदीप के लिए। खुदा यीशु के नाम से तेरी बंदे की जो हेडेक है उसका सारा असर खत्म हो यीशु के नाम में। हर तरह की ये मिग्रेन जो आधे सर की दर्द दफा हो यीशु के नाम से, और सारा प्रेशर जाता रहे। खुदा तेरे बच्चे आजाद हो मुकम्मल तौर पर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। रिबीक दिस सिकनेस, यीशु के नाम से दफा होने का हुक्म देते हैं। थैंक यू फादर। खुदा ब्लेस करो बाप, ब्लेस करो खुदा। इसी तरह माया के लिए खुदा उसकी नेक पेन दफा हो यीशु के नाम में। हम तुझे हुक्म देते हैं दफा हो यीशु के नाम में। ये सारी दर्दें वगैरह जाती रहे खुदा तेरी बच्ची का जो नेक पेन वगैरह, इसका सारा असर खत्म हो और इसके सारे सिम्टम्स जायल हो यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, ब्लेस यू गॉड। खुदा अमन बहना मंदीप पर और माया पर खुदा तेरे बेटे यीशु के खून को मांगता हूं, यीशु के खून को मांगता हूं। इनकी सारी दर्दें, सारी परेशानी, सारी फिक्रें खुदा दफा हो यीशु के नाम से, और यीशु के खून को मांगते हैं। खुदा आसमान से बहाली के दिन आए खुदा, मुकम्मल शिफा यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। खुदा सभा के लिए बाप हम तेरा शुक्र करते हैं बाप। थैंक यू फादर। वी प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस अपॉन हर ओ गॉड। यीशु के खून के ताबे लाते हैं इसके तेरी बच्ची को खुदा, ये यूरिक एसिड की बीमारी को और इस स्पिरिट को आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस, दफा यीशु के नाम में।
हालेलुया। खुदा तेरी बच्ची आजाद हो यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर, ब्लेस हर होगा, ब्लेस हर होगा। थैंक यू फादर। और तेरे उसके बेटे के लिए, अरुण के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तू हर नए साल को रौनक का ताज बख्शता है खुदा। बच्चे खुदा तेरी महरास है खुदा। हम इस अरुण बच्चे को भी तुझे वापस करते हैं, तुझे देते हैं खुदा बाप। हालेलुया। इसको खुदा अपने जलाल, अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करना खुदा। उस पर तेरी मोहर हो बाप। और है खुदा ये बच्चा जैसे जैसे कदो कामत में बढ़े, तेरी पहचान में खुदा सैमुअल की तरह बढ़ता चला जाए यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर, ब्लेस हिम ओ गॉड। खुदा तेरा शुक्र हो बाप। इसी तरह सोनिया के लिए, सोनिया के सैमुअल को खुदा हम तेरे हाथों में देते हैं। हालेलुया। तूने ये बच्चा नाम लेकर दिया खुदा अपने बच्चा, अपने खादम को खुदा यीशु के नाम की खातिर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी रिब्यूक दिस सिकनेस। यीशु के नाम से दफा हो ये सारी खारिश और जो भी तकलीफ है तेरे बेटे यीशु के नाम से दफा हो। इस बच्चे को खुदा मुकम्मल तौर पर आजादी है बाप। हालेलुया। इस पर यीशु के बेशकीमत खून को मांगते हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर, यीशु के नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, ब्लेस सैमुअल ओ गॉड फादर। खुदा जैसे खुदा सैमुअल कदो कामत में बढ़ता चला गया और तेरी पहचान में बढ़ता गया खुदा ये सैमुअल भी खुदा सैमुअल नबी की रूह का दूना मसा उस पर ठहर जाए यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, ब्लेस दिस चाइल्ड ओ गॉड फादर, यीशु के नाम की खातिर, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर ओ गॉड। हालेलुया। माँ बाप के ईमान को और बढ़ा दे खुदा बाप। हालेलुया। भाई प्रिंस पॉल के लिए, खुदा सोनिया के लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं, तेरी सलामती मांगते हैं, उनकी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। हालेलुया। खुदा आंटी के लिए, उनके पीआर के लिए, उनके सारे प्रोसेस के पेपर वर्क को यीशु के खून में छुपाते हैं खुदा। तेरे स्पुर्द करते हैं खुदा किसी तरह की रुकावट ना हो और खुदा अफसरों के दिल माइल और कायल हो जाए यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। खुदा हर अच्छी चीज और कामल इनाम तेरी तरफ से आता है खुदा। इन पेपर्स पर, उनकी फाइल पर खुदा यीशु के खून को मांगते हैं। और खुदा अगर वो नीचे है तो ऊपर आ जाए यीशु के नाम में। और खुदा किसी तरह की कोई रुकावट ना हो यीशु के नाम। थैंक यू फादर। खुदा इस कलाम पर, आज के कलाम पर तेरी मोहर हो खुदा बाप। ये कलाम बहुत सा फल लाए और तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिले, सब बातों में यीशु को जलाल मिले। थैंक यू फादर। खुदा सारे ग्रुप पर तेरी बरकत के हाथ को मांगते हैं। जो आए इन सब के लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं, और जो नहीं आए उनके लिए भी तेरी बरकत, नन्ही के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। इस ग्रुप को खुदा में अजीब अजीब काम हो और तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिलता रहे। थैंक यू फादर। खुदा तेरा शुक्र हो खुदा। इस कलाम पर एक दफा फिर तेरी मोहर हो खुदा, यीशु के नाम में। खुदा आइंदा भी मिलने का फजल बांट। इन द माइटी नेम ऑफ यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते और पाते हैं। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया।